Hello everyone. So in this lecture we will discuss about addition reaction of alkenes. Addition reaction of alkenes are also called as polymerization reaction because in this reaction small molecules of alkene they add together to give the large molecules which are called as polymers. So these reactions are also called as addition polymerization or vinyl polymerization reactions. For example, we have this reaction. This is our ethene molecule CH2 double bond CH2 at 463 Kelvin and 1500 atmosphere pressure in the presence of traces of oxygen. बहुत सारे n number of ethene molecules with join with each other and we will get polyethene, polyethylene. बहुत सारे ethene molecule, polyethene ये मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पे लिखेंगे. एंड पॉलीथीन इज ऑफ टू टाइप्स, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन. लो डेंसिटी पॉलीथीन इनर्ट होता है बट हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज more inert than low density polythene. Also it is tougher and harder and it has higher tensile strength than low density polythene. Another example of polymerization reaction is formation of polypropylene. This is our propene molecule CH3 CH double bond CH2 और इसके n नंबर बहुत सारे molecules आपस में जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे in the presence of tri-ethyl aluminium, 10 atmosphere pressure, 373 Kelvin temperature. और बहुत सारे molecules आपस में डबल बॉन्ड के अराउंड एडिशन होगी. तो ये CH3 molecule हम यहाँ नीचे लगा देंगे. इस डबल बॉन्ड जो दो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके अराउंड एडिशन होगी तो बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे आपस में एंड वी विल गेट पॉलीप्रोपाइलीन मॉलिक्यूल. Now polymerization reactions are of two types. First is free radical polymerization and second is addition polymerization. So first we will discuss about free radical polymerization. Free radical polymerization, it takes place in the presence of catalyst which produce peroxides. So peroxides से ये reaction initiate होती है. So first step we will discuss is chain initiating step. तो peroxide यहाँ पे जो हम लेंगे, this peroxide यहाँ से हमें peroxide free radical मिलेगा. ये peroxide free radical है, यहाँ से CO2 निकल गया, we will get alkyl free radical. This alkyl free radical will react with alkene and we will get this alkyl free radical. तो ये फ्री रेडिकल जो हमें मिला है बिकॉज दिस इज़ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, तो ये फ्री रेडिकल से इनिशिएट होगी. अब ये फ्री रेडिकल जो इनिशिएट हुआ है, जो प्रोड्यूस हुआ है, वो चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप, चेन को चलाएगा आगे. This is the free radical which we have obtained in the step 1. It will attack on the other alkene molecule. तो ये जो है एल्काइल फ्री रेडिकल यहाँ पे अटैक करेगा एक इलेक्ट्रॉन के साथ. ये डबल बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे. तो इस कार्बन पे ये जो डबल बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गया, वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाएगा जो कि हमने इस कार्बन पे दिखाया है और ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में. सो दिस इज़ हाउ चेन विल प्रोपेगेट. लाइकवाइज ये जो फ्री रेडिकल है वो दोबारा से नेक्स्ट एल्कीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा. वहाँ से एक और फ्री रेडिकल हमें मिलेगा, फिर वो फ्री रेडिकल नेक्स्ट एल्कीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा. तो दिस इज़ हाउ द चेन विल प्रोपेगेट. नेक्स्ट इज चेन टर्मिनेटिंग स्टेप. चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में जितने भी फ्री रेडिकल्स बने हैं दे विल कंबाइन विद ईच अदर टू गिव द फाइनल प्रोडक्ट. ये हमारे पास एल्काइल फ्री रेडिकल जो कि चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप में बना था, ये दूसरे फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा. जैसे ये एक फ्री रेडिकल है, ये दूसरा फ्री रेडिकल, दोनों ने आपस में कंबाइन किया और ये फ्री रेडिकल के आपस में बॉन्ड बन गया एंड वी विल गेट दिस बिगर पॉलीमर. Likewise, ये free radical can also combine with alkyl free radical which is produced in the step 1 to give the polymer. Second type of polymerization is ionic addition polymerization. Now ionic addition polymerization is of two types, cationic polymerization and anionic polymerization. So first is cationic polymerization. Cationic polymerization, it takes place in the presence of acids जैसे H2SO4 है, HF है, या Lewis acid. Lewis acids होते हैं which are deficient in electrons, जैसे AlCl3 है. AlCl ने 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, तो Al के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, so it is electron deficient. So it takes place in the presence of acids. So it is cationic polymerization. So it takes place by the formation of carb cations. So यहाँ पे first is chain initiating step. एसिड जो है एल्कीन मॉलिक्यूल को अटैक करेगा. एसिड क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो अगर एसिड इस कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे मूव कर जाएंगे, एसिड इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड बन गया. अब इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो वी विल गेट दिस पॉजिटिव चार्ज एंड वी विल गेट दिस कार्ब कैटायन इन चेन इनिशिएटिंग स्टेप. नेक्स्ट इज चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप. चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप में ACH2CHG ये दूसरे एल्कीन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा क्योंकि इसने चेन को प्रोपेगेट करना है. वी विल गेट, ये अब कार्ब कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे एंड इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. वी विल गेट दिस कार्ब कैटायन.
तो ये कार्बकेटाइन जो बना है ये अगले एल्कीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, अगले एल्कीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH जी, अभी डबल बॉन्ड के मॉलिक्यूल फिर यहाँ पे अटैक करेंगे, नया बॉन्ड बन जाएगा, ये यहाँ पे नेक्स्ट कार्बकेटाइन बन जाएगा. सो दिस इज हाउ द चेन विल प्रोपेगेट. नेक्स्ट इज चेन टर्मिनेटिंग स्टेप. चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में जितने भी कार्बकेटाइन बने हैं इट विल लूज one H positive ion and we will get this final alkene product. Next is anionic polymerization. Anionic polymerization, it takes place in the presence of bases and it takes place with the formation of anions. So first is चेन इनिशिएटिंग स्टेप. चेन इनिशिएटिंग स्टेप में ये हमारा एल्कीन मॉलिक्यूल है, इट रिएक्ट्स विद बेस. अब बेस जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो अगर बेस इस कार्बन पे अटैक करेगा तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स जो डबल बॉन्ड के हैं वो दूर जाएंगे, सो दैट बेस के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है, इसको ये इस कार्बन पे अटैक करना है, तो इस कार्बन के जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है दे विल मूव अवे. सो यहाँ पे बेस ने अटैक किया, बेस के साथ बॉन्ड बन गया एंड वी विल गेट दिस कार्ब एनायन. दिस कार्बन विल अटेन नेगेटिव चार्ज बिकॉज डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैव शिफ्टेड टू दिस कार्बन एटम. सो we will get this carb anion. Next is chain propagating step. Chain propagating step में क्या होगा, ये जो कार्ब एनायन बना है इट विल अटैक ऑन अनदर एल्कीन मॉलिक्यूल एंड वी विल गेट दिस अनदर कार्ब एनायन. ये कार्ब एनायन जो है दोबारा से चेन प्रोपेगेट करेगा और हमारे पास नेक्स्ट एल्कीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा. ये अगला एल्कीन मॉलिक्यूल है, वैसे ही ये कार्ब एनायन यहाँ पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर जाएंगे एंड वी विल गेट कार्ब एनायन. तो चेन बड़ी होती जाएगी, प्रोपेगेट होती जाएगी. चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में जितना भी कार्ब एनायन बना है चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप में इट विल रिएक्ट विद H पॉजिटिव आयन एंड वी विल गेट दिस फाइनल प्रोडक्ट. सो दिस इज हाउ एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस. तो हमने दो तरह की एडिशन रिएक्शन डिस्कस की हैं. फर्स्ट इज फ्री रेडिकल एडिशन एंड सेकंड इज आयनिक एडिशन. नाउ सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है दो तरह की होती हैं, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन एंड विनाइलिक सब्स्टिट्यूशन. क्योंकि एल्कीन पे देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वी नो दिस इज़ विनाइलिक पोजीशन, दिस इज़ एलाइलिक पोजीशन. तो एलाइलिक पे भी सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, एलाइलिक पोजीशन पे भी सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, विनाइलिक पोजीशन पे भी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो सकता है. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन. सो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या है, वी हैव दिस प्रोपीन ने Cl2 के साथ कंबाइन किया at 775. तो एलाइल पोजीशन का एक हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन एंड वी विल गेट एलाइल क्लोराइड. सो हियर सब्स्टिट्यूशन इज टेकिंग प्लेस एट एलाइलिक पोजीशन. ये एलाइलिक पोजीशन है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन की विनाइलिक पोजीशन एंड इट विल बी कॉल्ड एज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन. इसका मैकेनिज्म क्या है, Cl2 ने दो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस किए, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स. क्लोरीन फ्री रेडिकल ने एलाइल पोजीशन पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड यहाँ से H निकाला. तो यहाँ से देखो एक H जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके, एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे छोड़ जाएगा. तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, CH2 विद वन ऑड इलेक्ट्रॉन, बाकी सारा मॉलिक्यूल सेम है and we will get allyl free radical. This allyl free radical will combine with Cl2 and we will get allyl chloride and chloride free radical. Second type of substitution is vinylic substitution. Vinylic substitution it takes place at vinylic group, जो डबल बॉन्ड कार्बन वाली पोजीशन होती है, विनाइलिक पोजीशन पे अटैक करता है एंड इट टेक्स प्लेस बाय कार्बकेटाइन मैकेनिज्म. सो दिस इज अवर एल्कीन और ये विनाइलिक पोजीशन है दोनों. तो इसने किसके साथ रिएक्ट किया, एसिड क्लोराइड RCOCl, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड वी विल गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन एंड HCl. इसका मैकेनिज्म क्या है, AlCl3 जो है एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा. अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये Cl नेगेटिव को यहाँ से अट्रैक्ट करेगा. Cl जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकलेगा तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. So we will get this carbocation plus AlCl4 negative. Now this carbocation will attack on this alkene molecule. तो इस एल्कीन, ये कार्बकेटाइन जो है इस कार्बन पे अगर बॉन्ड बनाएगा, ये वाला कार्बकेटाइन इस कार्बन पे बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर जाएंगे. सो वी विल गेट, ये हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ था, इस कार्बन के साथ कार्बकेटाइन ने बॉन्ड बना लिया है COR. अब यहाँ से H पॉजिटिव विल लीविंग इट्स इलेक्ट्रॉन एंड वी विल गेट दिस डबली बॉन्डेड एल्कीन. सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट. थैंक यू.